सभापति महोदय को मेरा नमस्कार। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से आपसे और इस सदन में बैठे हर माननीय सांसद से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप में से कोई भी शौनक सेन के अचीवमेंट के बारे में जानते हैं, या बुकर्स प्राइज विनर गीतांजलि श्री को, या फिर शायद नीना गुप्ता जी जिन्होंने रामानुजन मैथ्स अवार्ड जीता उनको? शायद कोई नहीं जानता होगा, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि इनके बारे में ना ही कोई टीवी इंटरव्यू ना ही कोई अखबार में एड छपी। पर हाँ, हम सब जानते हैं कि कौन से आईएएस कोचिंग का बैच कब से शुरू हो रहा है और कितनी % स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। A survey by THK Jain University has stated that 55.3% of all advertisements in newspapers are about coaching institutes. And these advertisements, Madam Speaker, are what poach the Dalits, the EWS, the weaker sections of the society, the lower middle class and the upper middle class into joining these institutes and losing their children. आज जिस जगह को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विद्या की काशी कही है, वो मणिकर्णिका घाट बन चुकी है महोदया, वो मणिकर्णिका घाट बन चुकी है। बच्चों के पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है, वो करेंगे क्या? Chairperson ma'am, I agree that the budding coaching institutes are just because of the failed Indian education system, and we have no choice. We can't eradicate them because they provide employment to 1 lakh people and generate an annual revenue of 58,000 crore rupees. But surely the government should take some steps to regulate this. I appreciate the government's efforts on the coaching institute policy which they produced, but are they enough? And the answer is absolutely not. And this is not just by me, by the Delhi High Court Justice D. Murugan son. He said that, and I quote ma'am, I quote, "This is for immediate attention for the government to act on by creating a regulatory body with appropriate powers to regulate such coaching institutes, as the current policies are completely insufficient." Moreover, ma'am, the new coaching policy has no mention to ensure transparency. I request the government to add this point to their policy also. The child to psychologist ratio currently in Indian coaching institutes are either 100:1 or maybe 150:0 at some places. सभापति महोदया, मैं कोई बड़ा परम ज्ञानी तो नहीं, पर हाँ, मेरे तजुर्बे से मुझे 2-4 सुझाव जरूर देने हैं माननीय मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट को। पहला तो गवर्नमेंट को एक स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए किसी एक्ट के माध्यम से या एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट के माध्यम से, ताकि इन कोचिंग इंस्टीट्यूशनों पर रेगुलेशन रखा जाए। इसके साथ ही मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करवाई जाए कोचिंग इंस्टीट्यूटों में। चेयरपर्सन मैम, आज बात विपक्ष या पक्ष की नहीं, देश के हित, युवा, अभिमान और सम्मान की है। मैं उचित मंत्रालय और सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरी बातों पर विचार विमर्श करे और देश के लिए उचित निर्णय ले। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। किसी महान व्यक्ति का कहना था कि युवा के विकास की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हमारा लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप हमें मिले विकसित विश्वगुरु भारत। As quoted by Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. These words remind us that education is not merely about acquiring knowledge, but continuous growth throughout our lives. Do you know what Lord Macaulay once said in British Parliament? He said that it is nearly impossible to rule India, but if they succeeded in breaking our backbone, our education system, then they'll succeed in breaking our entire nation, and that's what they did, and that's what today's coaching institutions are doing. They are prioritizing rote learning over true understanding, thus reducing education to a mere race for marks. आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है।
चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या यह पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दे। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। Thank you, Honorable Speaker Madam. With the permission of the Honorable Speaker Madam, as a young and woke mind of my country, considering it my outright duty, today I stand in favor of the motion. In the current scenario, coaching institutions are essential for competitive exam preparation and personalized education, which is not fully available in school due to time constraints and specific syllabus, which is why 75% of Indian students opt for coaching. But media reports are highlighting that these coaching institutions are charging very high fees and using unfair practices, causing stress on students, which even leads to suicidal cases. The 2024 guidelines do prohibit misleading promises or guarantee ranks to protect families who sacrifice their livelihoods for these fees. लेकिन अगर इन नियमों का उल्लंघन ऐसे ही होता रहा तो एक गरीब बच्चा जो कोचिंग की एडमिशन फीस के लिए धक्के खाता है, उसकी व्यथा बस यही हो जाएगी कि लेकर अपनी टूटी साइकिल कोचिंग भागा हूँ, एडमिशन फीस के चक्कर में रात भर जागा हूँ, भाग दौड़ की जिंदगी में आई बहुत थकान, एडमिशन फीस के चक्कर में बिक गए खेत मकान, उम्र हमारी 18 बरस की हर दिन मुझे सताती है, एडमिशन फीस चुकाने में उम्र बीती जाती है, देख देख शिक्षा का आलम मन में बड़ी उदासी है, but this poor child can be helped by following regulations laid in an effective regulatory framework. We must know that a framework is important, but what's more important is the strict implementation. मैं यहाँ उपस्थित सभी सांसदों से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम हमारे भारत के युवाओं को ऐसे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने भेज सकते हैं जहाँ ना कोई नियम हो ना कानून और बस कोचिंग वालों की मनमानी हो? क्या हम भारत के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा सकते हैं? USA, UK, Canada and Australia are examples of countries that have implemented an effective regulatory framework. Honorable member, kindly conclude. In India also, violations would incur penalties. Now, I would like to anchor the ship of my words with a famous quote by APJ Abdul Kalam sir. हम राष्ट्र नहीं बनाते, हम इंसान बनाते हैं, उन्हें शिक्षित करें और राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। जय हिंद।